An academy. Let's crack it. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. Take your seat, please. Thank you, sir. Okay. Now, Krishna Kumar Kori. Krishna Kumar Kori, you are from Sagar, Madhya Pradesh. Yes, sir. Before we start, you had a full head of hair. Now, suddenly there is no hair. I mean, you are the same person, no? Yes, sir. Where your that photo shows total hair, full of hair. Yes, sir. Now you don't have much of hair on your head. Sir, you are the due same. to Acha, demise some of my Tauji, so I have Oh, to acha, say acha, that is right. Okay. Okay. Describe yourself, Krishna Kumar, in 2-3 lines, 2-3 sentences. Who is Krishna Kumar Kori? I am from Sagar, Madhya Pradesh. I have done my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kori, Sagar, Madhya Pradesh. Then I have graduated in 2020 from IIT VHU Varanasi, and currently I am working as technical assistant in GE Panth DSU Okla 3 campus. I'll start with your present vocation. You are comfortable in Hindi or English or both? More comfortable in Hindi, sir. More in whenever you feel like that, you can switch over to Hindi. No issue. Okay, sir. Thank you, sir. Or English, whatever you feel like. Yes. Now, your present occupation, that is GV Pump Technical Assistant, Yes. what exactly are you? You are conducting practical classes for the students, IIT, this G Pump civil engineering students? Yes, sir. But due to staff shortage, I have to manage administrative work. No, that is of course administrative okay. But what are the type of experiments, geotechnical experiments you conduct? Generally, अभी sir concrete technology के regarding ही. Which technology? Sorry. Concrete technology. Country. Yes, sir. What is country technology? It's about process of concrete making. Acha, concrete technology. Okay, Yes, okay, concrete technology. Yes. So, concrete, what are the specific technologies you are demonstrating in the lab? Generally, sir, compressive testing, compressive test machine को ऑपरेट करने के लिए. Compressive testing जो है, compressive testing आप कौन सी इंस्ट्रूमेंट apparatus यूज करते हैं उसके लिए? CTM मशीन रहती है, उस पर सर क्यूब अभी तो सर क्यूब ही टेस्ट किए हैं. क्यूब टेस्ट, तो वो आपके पास सारे लेटेस्ट apparatus है, इंस्ट्रूमेंट्स है आपके पास? यस सर, डिजिटलाइज्ड है, लेकिन अभी तो डिजिटलाइज्ड है. अच्छा, एक है compressive टेक्नोलॉजी, दूसरा और सर इनिशियल सेटिंग टाइम वगैरह है, और स्लम टेस्ट. इनिशियल सेटिंग टाइम, वो कौन सी apparatus आपके पास है लैब में? ब्रिकेट अपैरेटस सर. ब्रिकेट अपैरेटस. ब्रिकेट, आई कुड गेट इट. सॉरी, ब्रिकेट अपैरेटस. ब्रिकेट apparatus. अच्छा, नेक्स्ट स्लम टेस्ट है. स्लम टेस्ट. यस सर, एंड कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है. तो स्लम टेस्ट का apparatus कौन सा होता है? सर उसका नाम तो मतलब स्लम टेस्ट अपैरेटस. apparatus. और दूसरी लास्ट और टेस्ट के बारे में होता है कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट. कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट. उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ऊपर टाइप के 3 सिलेंड्रिकल वो होते हैं. तो कैसे किया जाता है कंपैक्टिंग टेस्ट? जो आप कैसे कंपैक्टिंग टेस्ट करके उसका टाइमिंग वो निकालते हैं, किसी कंपैक्शन टाइप? कंपैक्टिंग वर्केबिलिटी निकालने के लिए यूज होता है. तो उसमें 3 हुपर रहते हैं. तो सबसे पहले कंक्रीट को सबसे ऊपर वाले हुपर में फिल किया जाता है. फिर उसके बाद उसको मतलब वो पार्शियली कंपैक्टिंग एबिलिटी निकाली जाती है सबसे नीचे वाले हुपर में. 3 हुपर रहते हैं उसमें. पहले वो कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस क्या है? सर कॉम्पैक्शन ड्यू टू एयर वॉइड के डिस्पल्सन से होता है, एंड कंसोलिडेशन डिस्पल्सन और पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर. ओके, लास्ट क्वेश्चन है. आपने सागर मध्य प्रदेश से है ना. सागर इज आल्सो फेमस फॉर सम हिस्टोरिकल रीजन, नॉन टेक्निकल रीजन. व्हाट आर द व्हाई सागर इज वेरी फेमस? Sagar is famous for Aaron, sir, which is evidence of Sati Pratha, and Sagar University only central. Historically, Sagar का बड़ा importance है. What are the important? Why Sagar is important historically, archaeologically, historically मध्य प्रदेश में? सर एरन अभिलेख है वहाँ पे जो सती प्रथा के साक्ष्य दिखाता है, और उसके अलावा तो वो जो अभिलेख है, ये कब का, कौन सी मतलब कितनी पुरानी है? ये अराउंड सर टाइमिंग तो याद नहीं है, लेकिन ये समुद्रगुप्त के टाइम का. अभिलेख में क्या लिखा गया है? कि एक उनके जो जनपद थे, उनकी डेथ होने की वजह से उनकी पत्नी वहाँ पे सती हुई थी. अच्छा, ये समुद्रगुप्त की पत्नी क्या? नहीं, समुद्रगुप्त के कोई एक वो थे मिनिस्टर टाइप, उनकी डेथ होने की वजह से
उनकी पत्नी वहाँ पे सती हुई थी। ओके, तो इसका अभिलेख तो ये एक बड़ी पर ये तो एक मंत्री जी का पति, बट इतना फेमस इसके वजह से है, और दैट इज ओनली रीजन, और देयर इज अदर हिस्टोरिकल रीजन? सर अभी तो मैं इतना ही याद कर पा रहा हूँ, और कंटोनमेंट वगैरह है सर। Hello, Krishna. यस सर। Can you tell me about influence line diagram? इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम सर किसी भी स्ट्रक्चर में जो भी जैसे रिएक्शन फोर्स हो या मूवमेंट हो, उन सब का वेरिएशन निकालने के लिए यूज़ होता है, जो जनरली मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल के थ्रू होता है। जिस जगह पे हमें इन्फ्लुएंस लाइन, जिस रिएक्शन के लिए हमें इन्फ्लुएंस लाइन वगैरह निकालना है, उस पे हम यूनिट रोटेशन या फिर यूनिट डिस्प्लेसमेंट देते हैं। Unit displacement देते हैं. यस सर। Okay. आपने बोला म्यूलर प्रिंसिपल. यस सर। क्या प्रिंसिपल है ये? सर यही मतलब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? कोई भी रिएक्शन या मूवमेंट के लिए जिसके लिए हमें यूडीएल रिएक्शन फोर्स का वेरिएशन या मूवमेंट का वेरिएशन निकालना है, तो उस पोजीशन पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट या यूनिट रोटेशन देना से। Can you tell me about Maxwell's theorem? Yes sir, Maxwell-Reti theorem express that if at any particular location and राइटिंग करके समझा दो। हाँ बिल्कुल, लीजिए। सर अगर किसी लोकेशन पे पॉइंट लोड एक्ट होगा, तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो इक्वल होगा जब उस प्लेस पे लोड लगाया जाए, तो जहाँ पहले लोड लग रहा था वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ठीक है। व्हाट यू मैम? Good morning, Krishna. यस मैम। How are you today? गुड मैम। Good. So, GB Pant, Okla. यस सर। GB Yes, yes. Pant, ओखला DSU 3 कैंपस। GB Pant. What's गोविंद the full form? गोविंद बल्लभ पंत, फर्स्ट CM ऑफ यूपी एंड होम मिनिस्टर इन फर्स्ट कैबिनेट एंड भारत रत्न रेसिपेंट। So, organization's name is Directorate of Training and Technical Education. यस मैम। What's the difference between teaching and training? Training is more related to practical aspect and skill development aspect, while teaching is about theoretical knowledge. So, while teaching, applicative aspects are not delivered? Delivered up to certain extent, but training and skill and train them in particular field, just like IDI and ड्राफ्टमैन, इन सब के बारे में ट्रेन करते हैं इसमें DTE में। अच्छा, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्लास ले रहा है, Yes, तो ma'am. उसको आप टीचिंग बोलेंगे या ट्रेनिंग बोलेंगे? टीचिंग बोलेंगे मैम। एंड अगर आपकी C++ की क्लास चल रही है या C प्रोग्रामिंग की क्लास चल रही है आपके कॉलेज में, या आप ही ले रहे हैं, Yes, तो ma'am. आप वो टीचिंग बोलेंगे कि ट्रेनिंग बोलेंगे? टीचिंग बोलेंगे। एंड और वो ट्रेनिंग कब होगी? while coding in laboratory and or by self। ठीक। आपने सिविल सर्विसेज प्री क्वालिफाई किया है? नो मैम। एग्जामिनेशन अपीयर हुआ था। अच्छा, अपीयर हुआ है। आपके सब्जेक्ट्स क्या थे? नहीं, उस प्री अभी आप प्लान कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट्स क्या नो मैम। prepare करेंगे? नहीं कर रहे हैं आप प्लान? प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, जस्ट ऐसे ही दिया था। ऐसे ही दे दिया था? यस। अच्छा, और आपका टारगेट भी नहीं है No, आगे? ma'am. कोई प्लान्स नहीं है सिविल नो मैम, सर्विसेज अभी के? तो नहीं है।
आप कंसंट्रेट ईएस पे ही करना चाह रहे हैं? यस मैम, कोई स्पेसिफिक रीज़न कि सिविल सर्विस नहीं और ईएस? क्योंकि टेक्निकल नॉलेज ही मैम अभी तक स्टडी किया है तो उसका ही मैं बेटर यूज़ कर पाऊँगा इन सर्विसेज, इसलिए ईएस ही प्रेफर करूँगा। अच्छा, ओके। आपने करिकुलम में लिखा है फिल्म एप्रिसिएशन, यस मैम, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? it is ma'am about analyzing the film and technicality of the film aspect and impact of them on culture and society. So, what's the difference between film appreciator and film critic? Generally they use interchangeably, but film appreciation about more of the technicality of the how films are made, how shots are assigned merged, और how एक्टर कैसे उसमें अप्रोच करते हैं एक्टिंग के लिए, इस टेक्निकलिटी डिटेल्स के लिए। और वो फिल्म क्रिटिसिज्म अबाउट कोई मूवी रिलीज होती है तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, इट इज़ मोर type of artistic so being a approach. film appreciator, Yes, which Indian directors cinematography you appreciate the most and why? I think मैम अनुराग कश्यप की सिनेमाटोग्राफी वगैरह मुझे पसंद है, क्योंकि उनका जो विज़न है वो मतलब अलग है। एंड वाइल सिनेमाटोग्राफी ही यूज डिफरेंट शॉट्स in movies like No Smoking and Oye Lagti Oye. So, थैंक यू। कृष्णा, Yes, sir. Yes, आप सागर से रहने वाले हैं ना? yes, sir. सागर का कोई दूसरा नाम भी है क्या? सर सावगर कहते हैं, SAUGOR, और पहले इसे सर स्वभोग नगर कहते थे। अच्छा, और किसी फेमस किसी चीज़ के लिए फेमस है ये? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, जो मध्य प्रदेश की ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे ये एरना विलेज है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको स्विट्जरलैंड ऑफ मध्य प्रदेश भी बोलते हैं क्या? यस सर, ये एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बोलते हैं इसको। अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से तैयार हैं आपने इंटरव्यू के लिए? सर सॉइल मैकेनिक्स और सर RCC एंड PERT CPM। PERT CPM, यस PERT एंड CPM में क्या डिफरेंस है दोनों में? सर, ये PERT में तो प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक है, एंड CPM क्रिटिकल पाथ मेथड है। क्रिटिकल पाथ मेथड में टाइम डिफाइंड रहता है कि किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर प्रोजेक्ट को फिनिश करना है, जैसा कि कंस्ट्रक्शन वर्क में जनरली यूज़ होता है। बट PERT में टाइम डिफाइंड नहीं रहता है, तो उसमें कितना भी टाइम लग सकता है, जैसे रिसर्च वर्क है इस टाइप का। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है? सर कोई प्रोजेक्ट की कितने कम ड्यूरेशन में वो कंप्लीट हो सकता है, मिनिमम ड्यूरेशन, वो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक? सबसे मतलब कितना लेट से लेट होने के बाद भी प्रोजेक्ट कितनी मैक्सिमम ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाएगा, उसे पेसिमिस्टिक टाइम कहते हैं। प्रॉक्टर टेस्ट क्यों करते हैं? ये सर कन्वेक्शन के लिए होता है, ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए, एंड एक मॉइस्चर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो मॉडर्न प्रॉक्टर टेस्ट और जो ओल्ड मॉडर्न प्रॉक्टर टेस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है? सर इसमें जो हैमर का वेट होता है उसमें डिफरेंस रहता है, और लेयर्स में एंड लेयर्स में भी शायद डिफरेंस होता है सर, एंड एनर्जी का डिफरेंस होता है। मॉडर्न प्रॉक्टर टेस्ट में अराउंड 4.5 एनर्जी इम्पार्ट की जाती है कंपेयर टू स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। Thank you, Kishan. You can wait outside. We'll call you back for feedback. थैंक यू सर।
टेक यू सीट प्लीज, रिलैक्स। कृष्णा, आज अगर खुद आपको इवेलुएट करना पड़े तो आप कितना मार्क्स खुद को दोगे? असेसमेंट मतलब आपके Around, ग्रेड sir. मान लीजिए, ग्रेड A B C D A प्लस B प्लस अराउंड सर सी। C। यस सर। क्यों अब इतनी पेसिमिस्टिक कैसे हो गया? अच्छा किया आज, नहीं सर, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब तसल्ली नहीं हुआ? नहीं यू आर सर। नॉट हैप्पी? नर्वस हूँ सर बहुत किस ज़्यादा। पे आपके लगा जो आपने सही नहीं किया? कौन सी मतलब टॉपिक में पूछा, नॉन टेक्निकल में मैम ने पूछा, मैं भी थोड़ा पूछा नॉन टेक्निकल, उसमें कौन सी इसमें आपको लगा आपने सही नहीं किया? जवाब मतलब ठीक ठाक थे, लेकिन मतलब स्मूथली जवाब नहीं थे सर। हाँ, ये बात सही है। एक्चुअली क्या है, एक तो सागर के बारे में, वो मध्य प्रदेश के बारे में प्रश्न आ सकता, नॉन टेक्निकल में 20-25% आ सकता है, तो वो थोड़ा सा नहीं सर, देख और लीजिए। इस एरन के अलावा एरंडा तो है ही, बट वो एक इतना माइनर है, वो थोड़ा सा मेजर नहीं है, बट आई थिंक बट वो थोड़ा सा और भी थोड़ा, एक तो सागर यूनिवर्सिटी है जो सही कहा, और सागर के आसपास, सागर प्रॉपर सागर में नहीं भी हो तो सागर के आसपास कुछ जो चीज़ें हैं उसको भी कह दीजिएगा, कुछ सागर के आसपास कुछ समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंट जो बाहर का लोग देखना चाहे, आना चाहेंगे, और समथिंग तो यूनिवर्सिटी के लिए तो है ही। यस सर। एरंडा के लिए बाहर का इतना ही समझ लो, तक कोई मिनिस्टर का पत्नी इज नॉट इम्पोर्टेंट, सर तो खुद का पत्नी होता तो दूसरी बात। तो ये थोड़ा सा इसको गूगल में कर लीजिएगा। और दूसरा जो है, आपका जो फ्लो है इसको थोड़ा सा और स्मूथ किया जाए। आपका कब इंटरव्यू कब है? इंटरव्यू तो सर नवंबर में है। बहुत टाइम है, तो Yes. आप ऐसे करें, उदाहरण आप ये सेम प्रश्न आप खुद को पूछिए मिरर के सामने बैठ के, यस खुद ही देखिए लीजिए। आप थोड़े से बहुत नैरेटिव फॉर्म में आ गया, मतलब एक स्टॉप एंड गैप, स्टॉप स्टार्ट ऐसे हो रहा है, तो Yes. आप ना इसको प्रश्न को गौर से सुनिए पहले, यस सर। माइंड में थोड़ा उसको प्रोसेस करिए, एक जवाब, यस ये सबसे इम्पोर्टेंट जवाब क्या हो सकता है, तो उसमें ना थोड़ा माइंड वाइज उसको माइंड में सॉर्ट आउट कर लीजिए। ये Yes. धीरे धीरे बोलिए, सर पहला मैं ये कहना चाहता हूँ, सेकंड कह शॉर्ट बुलेट पॉइंट जिसको कहते हैं, मैं तीसरा करके चुप हो जाइए। ऐसे पॉइंट वाइज अगर आप जवाब दे, लगता है जब आपका कॉन्फिडेंस है, दिन आपका वॉइस जैसे एक मोनोटोनी जैसी आ जाती है, यस तो वो नहीं आएगी, तो इंटरेस्टिंग टाइप पे, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस से सभी हो सकता है। प्रैक्टिस आप मिरर के सामने करिए, आपका फ्रेंड सर्कल के साथ एक दूसरे को क्वेश्चन करे, प्रश्न पूछे, ये हो सकता है। और आपका नवंबर में है तो अक्टूबर में एक बार जरा फिर एक बार मॉक करवा लीजिए, मॉक पे इधर आइए, बार जहाँ पे आपको जाना है, ठीक है सर। इवेलुएट करा लीजिए। यू आर वेल गुड, आप है, पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। Yes, और sir. वो सब्जेक्ट बहुत सारे पूछा नहीं आज, तो सब्जेक्ट को थोड़ा सा आप ब्रश अप, न्यू टेक्नोलॉजीज जो आपके जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत कहिए जो मैं अभी सिर्फ वो क्लार्की काम कर रहा हूँ, नहीं आप क्लार्की करें दूसरी बात है, पर जो आप टेक्निकल जो चीज़ है उसको थोड़ा सा, जो प्रेजेंट जो जॉब है Yes, उसको थोड़ा सा और भी थोड़ा अच्छी तरह से मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, उसमें ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलूँ, वो तो आपका रोजी रोटी दे रहा है अभी, तो उसकी पूरी एक इंस्ट्रूमेंट का पूरा डायमेंशन क्या है, उसकी परिधि क्या है, सब कुछ एक एक चीज़ अब इसमें अभी उस सर उतना इन्वॉल्व नहीं रह पाते हैं ना इसमें, तो नहीं, मतलब उसको लेकिन अब करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जैसे लिखा, आप डेफ में लिखा है, तो उसको आप जाके आप इंस्टीट्यूट में जाके थोड़ा सा उसके एक जरा इंस्ट्रूमेंट का अपरेटस का थोड़ा ध्यान करिएगा। ओके सर। अगर इतना नहीं भी किया, Yes, पर जैसे डेफ में लिखा लोग एक्सपेक्ट करेंगे जब उसका आपके इन्वॉल्वमेंट है, यस ठीक है ना, तो उसको और प्लस जो आपका नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक वाला जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहा है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग है, सब कुछ न्यू, तो उसका थोड़ी सी आप टेक्निकल सर्विस है ना हाईएस्ट, यस सर। उसके थोड़ी सी आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लो का, वो यूपीएससी बोर्ड का थोड़ा हायर होगा। न्यू sir. टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, आपके जो एप्लीकेशन, बेसिकली आपका एप्लीकेशन क्या, कैसे एप्लीकेशन करोगे, तो ये सब चीज़, तो ये एक्सपेक्टेशन यूपीएससी बोर्ड का ऐसी होगा, ओके ठीक सर। है। अब क्लास 2 में जैसे आप एक एसएससी पास जूनियर इंजीनियर के पास इतना एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, पर जैसे ही आपने आईईएस में जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई होगा, आपका नॉलेज बेस एप्लीकेशन, बेसिकली एप्लीकेशन, ओके सर। ठीक है। ठीक। और एक बार दोबारा अक्टूबर में आ जाइए, थोड़ा सा ठीक है, एक बार दोबारा इवैल्यूएट करा लीजिए। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू। अब अच्छा यू आर इन दिस जोन, आपका इस साल होने वाला है, ठीक है। अभी तो सर कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ, कॉन्फिडेंस लाइए ना, बिकॉज आप क्योंकि कॉन्फिडेंस सर
में आपको, बिकॉज आप सारे आपके सब गुण हैं जो आपको ले जाएगा, पर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा ज़्यादा, और कॉन्फिडेंस तो प्रैक्टिस ही होगा। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, खुद प्रैक्टिस मित्र मंडली के साथ करिए, मिरर के सामने बैठ के करिए, और दोबारा आइए ओके सर। प्रैक्टिस करके, ऐसे नहीं फिर दोबारा कल बताइए, नहीं पर एक प्रैक्टिस करके आइए ओके दोबारा, सर, ठीक है? ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। An academy. Let's crack it.